we have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. Solid and liquid ની comparison માં gases કેવા છે? highly compressible, દબાવી શકાય એવા છે. liquefied petroleum gas LPG, LPG cylinder આવે આપણા ઘરે એ that we get in our home for cooking or the oxygen supplies to hospital. હોસ્પિટલ માં જે ઓક્સિજન સપ્લાય આપવામાં આવતો હોય તે સિલિન્ડર. ये oxygen supplies to hospital in a cylinder is a compressed gas. compress કરેલા ગેસ છે, નાનું સિલિન્ડર તેમાં બી ઘણા કલાકો સુધી ચાલુ રહે. LPG ગેસ તો આપણા ઘર 2-3 મહિના સુધી ચાલે. compress the natural gas CNG is used as fuel these days in vehicle માં CNG use થાય છે, compressed natural gas. Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into small cylinder and transported easily. High compressibility છે એટલે large amount of gas can be compressed and stored in a small cylinder. Okay. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. અંદર enter to kitchen માં enter થવા પહેલા જ આપણે ખબર પડી ઘરમાં શું બનતું છે. By the smell of the riches that reaches our nostrils. Smell that reaches our nostrils. तो smell है वो हमारी nostril तक पहुंच जाती है, तो हमें पता चल जाता है घर में क्या बना है. How does this smell reaches us? कैसे पहुंचती है? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen. जो अरोमा होती है, जो स्मेल होती है, ठीक है, वो पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ मिक्स होके किचन से बाहर आ जाती है. reach us and even farther away, हम तक पहुंचती है, हमसे दूर भी जाती है. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. cooked food होगा तो seconds में हमें पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquid. Solids and liquid का diffusion कम होता है, गैस का diffusion ज्यादा होता है. Due to the high speed of particles and large space between them. Due to high speed of particles में speed बहुत ज्यादा होती है, and large space between them, gases show the property of diffusing very fast in the other gases. gases में gases फटाफट mix हो जाते हैं, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है, चलो यहाँ पे पार्टिकल्स दिखाए हैं, देखो सॉलिड के पार्टिकल्स है तो नजदीक नजदीक है एकदम, ठीक है. लिक्विड है तो थोड़ा दूर है, थोड़ी थोड़ी स्पेस है बीच में, और मूव कर रहे हैं इधर उधर. और गैस के पार्टिकल्स में बहुत सारी जगह है, वो भी इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ फिगर 1.5. इसको ड्रॉ करना है और होमवर्क में लिख देना है. In the gaseous state, the particles move about randomly at the high speed. Particles randomly इधर उधर घूमते रहते हैं, randomly. इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे random. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. अब ये इधर उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब ये यहाँ होगा, इससे कोलाइड होता है. एक दूसरे के साथ क्या होता है? हिट. पार्टिकल्स हिट, कोलाइड each other and also the walls of the container. एक दूसरे के साथ भी हिट होते हैं, एंड कंटेनर की जो वॉल है उसके साथ भी
हीट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे से हिट होते रहते हैं। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the wall of the container. याद रखना है, the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. ठीक है, ये पार्टिकल जो इधर उधर एक दूसरे के साथ हिट करते हैं और जो ये बॉडी है यहाँ पे उससे बाहर भी हीट होते हैं। इससे कारण क्या होता है, गैस में प्रेशर क्रिएट होता है। बलून हम होकर दबाएंगे तो हमें प्रेशर फील होगा। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हीट होते रहते हैं, कोलाइड होते रहते हैं। ठीक है, ABC यहाँ पे दिखाया गया पार्टिकल्स कैसे हैं। यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पे थोड़े दूर है, और इधर उधर खिसक रहे हैं थोड़े। यहाँ पे ज्यादा दूर है और एक दूसरे के साथ हीट हो रहे हैं और सरफेस के साथ भी हीट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सबको अटेम्प्ट करना है और लिख देना है आपको होमवर्क में। ठीक है, सब क्वेश्चंस आंसर अटेम्प्ट, क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है। आंसर जो अगर नहीं समझ में आया तो कल पूछ लेना मुझे, आई विल एक्सप्लेन द आंसर्स। चलो पॉइंट 1.4, कैन मेटल चेंज इज स्टेट? तो मेटल अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। We all know from the observation that water can exist in 3 state of matter. Water 3 states में exist कर सकता है। जैसे solid होगा तो आइस होगा तो solid form में, water जो है वो liquid form में, और water vapor जो है वो gaseous form में। ठीक है, तो water, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर स्टीम फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। What happens inside the matter during this change of state? जब स्टेट बदलता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो मैटर में क्या चेंज होता है उसके पार्टिकल्स में? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answers to these questions, isn't it? पार्टिकल्स में क्या चेंज होगा? इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या बढ़ाना है हमें यहाँ पे? टेम्परेचर। ठीक है, ये आइस है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये लिक्विड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो वेपर आइस हो जाएगा। वाटर हो गया यहाँ पे पहले क्या था? आइस, अभी क्या हो गया? वाटर। अब ज्यादा बढ़ाएंगे तो वाटर वेपर हो जाएगा। ये आइस टू वाटर एंड वाटर टू वाटर वेपर। On increasing the temperature of the solids, the kinetic energy of the particles increases. जैसे भी हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड है जैसे यहाँ पे हमारा आइस है, तो उसका काइनेटिक, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब पार्टिकल इधर उधर भागना शुरू करेंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे।
The energy supplied by heat overcomes the forces. यहाँ पे याद रखना है. The energy supplied by the heat overcomes the energy supplied by the heat overcomes the forces of attraction between the particles. The energy supplied by the heat जो दे रहे हैं उससे क्या होता है, पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके ऊपर वो हावी हो जाती है. कौन सी? हीट एनर्जी. ठीक है. द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, और अपनी पार्टिकल अपनी जगह छोड़ देते हैं और इधर उधर भागते हैं. स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली. द स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स. सॉलिड क्या हो जाता है? मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है. एंड इज कवर्ड टू एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड. मेल्ट होता है और क्या हो जाता है? कन्वर्टेड टू लिक्विड. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point. ये याद रखना, melting point. Melting point किसे बोलते हैं? तो the minimum temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. जिस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए, सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है. तो जिसका यहाँ पे लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होगा. ठीक है. जैसे आइस है तो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, 0 डिग्री से ज्यादा होगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. तो मतलब के उसके पार्टिकल्स में, जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, और आयन होगा तो उसका टेम्परेचर हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. तो जैसे मेल्ट होगा उसका जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करेगा कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, चलिए याद रखना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 273.15 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं 1 डिग्री सेल्सियस. जीरो डिग्री सेल्सियस 273 यहाँ पे केल्विन is the SI unit of temperature, and 0 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin. For convenience, we write 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. ठीक है. तो melting point of ice कितना है? 0 डिग्री. से थोड़ा बढ़ेगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. The process of melting. The process of melting, that is change of solid state into a liquid state, is known as fusion. क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड होता है, उसमें क्या होता है? फ्यूजन. उससे जो पार्टिकल्स है वो थोड़े अलग होते हैं. When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब सॉलिड मेल्ट होता है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है. तो टेम्परेचर जो हीट मिल रही है वो कहाँ जा रही है, सवाल पूछते हैं.
You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. Temperature of the system, याद रखना है, temperature of the system does not change after the melting point is reached. melting point पहुंच गया, फिर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, जो हम उसे गर्मी देते रहते हैं फिर भी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है. Till all the ice melts, सभी आइस मेल्ट हो जाएगी. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat gets used up in the changing. वो कहाँ पे जाती है? This heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. ठीक है, अगर आइस है उसको हम गर्म करेंगे तो जब तक आइस पिघल ना जाए तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन हम हीट देते रहते हैं नीचे से. ठीक है, तो जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो किसमें यूज हो रही है हीट? जो आइस के पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं, ठीक है, उसको उसमें यूज हो रही है. वो हीट आइस के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को कम करके अपना फोर्स उस पे डाल रही है. ठीक है, स्टे बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. As this heat energy is absorbed by the ice, वो हीट एनर्जी आइस में चली जाती है अंदर, मतलब इसीलिए सिस्टम में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता. विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में हमें राइज दिखेगा नहीं. It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. क्या बोलेंगे उसे? Latent heat. ठीक है, the word latent means hidden. हीट कैसे हिडन है, मतलब टेम्परेचर थर्मोमीटर में नहीं दिखाएगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. ठीक है, इसे रिपीट कर रहा हूं. The amount of heat energy is required to change 1 kg of solid. 1 kg जो सॉलिड है उसे हम लिक्विड में जो कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और मेल्टिंग पॉइंट पे. इस पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ नहीं रहा है इसका, हम हीट दे रहे हैं फिर भी, तो 1 kg तक जो पिघलेगी वो, तो जो जितनी हीट हमें उसे देनी पड़ रही है, तो वो क्या है? वो टेम्परेचर पे नहीं दिखा रही, लेकिन वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन करने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ती है जो टेम्परेचर में नहीं आ रही, तो उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. हिडन हीट है. ठीक है, सो पार्टिकल्स इन वाटर at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius मतलब 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Particles of water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. 0 डिग्री सेल्सियस में दो पॉसिबिलिटी है, वाटर भी बन सकता है और आइस भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे आइस जो होता है उसमें पार्टिकल्स में कम एनर्जी होगी, लेकिन 0 डिग्री पे ही वाटर के पार्टिकल्स है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब एनर्जी अपने अंदर लाके आइस टू वाटर बन गए हैं, इसलिए एनर्जी उसमें ज्यादा है. और जो आइस है वो अभी आइस ही है, उसके पार्टिकल्स अभी भी, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स है पानी से ज्यादा.
When we supply heat energy to water, ठीक है, जैसे वाटर में हम वाटर को हीट एनर्जी दे रहे हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. अभी वाटर तो हो गया, और वाटर में अगर ज्यादा हीट दे रहे हैं तो पार्टिकल्स मूविंग फास्टर, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे और ज्यादा. एट अ सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction. ठीक है, एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं of each other. At this temperature the liquid starts changing into gas. अब ज्यादा हीट देते रहोगे उसे तो पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के दूर भाग जाएंगे और मतलब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. इसे क्या बोला जाएगा? Boiling point. जो टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gains enough energy to change into the vapor state. कौन से स्टेट में कन्वर्ट होते हैं? वेपर स्टेट. पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो एक दूसरे को छोड़ के अलग हो जाते हैं और वेपर स्टेट में आ जाते हैं. ठीक है. For water, this temperature is 373 Kelvin. मतलब कब ऐसा होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना है. अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 से प्लस करना है. अगर 100 सेल्सियस है तो सिर्फ केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो 100 प्लस 273 तो हमें मिलेगा 373 केल्विन. मतलब सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे 273 से प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, हमारे पास सेल्सियस है और उसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में. तो करना क्या है? जो सेल्सियस की अमाउंट है, जो फिगर है, उसे किससे प्लस करना है? 273 से प्लस करना है. ठीक है. उसी तरह उल्टा कर सकते हैं. अगर केल्विन में दिया गया और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सेल्सियस टू केल्विन करेंगे तो 273 से प्लस करना पड़ेगा और केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो 273 से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, याद रखना है इतना. Can you define the latent heat of vaporization? अब latent heat of vaporization क्या है? Latent heat of fusion तो हमने देखा कि जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. अब जब हीट जो मिल रही है कंटिन्यूअसली उसे वो टेम्परेचर में नहीं दिखा रहे, वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसमें काम आती है? लिक्विड टू वेपर, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion particles in steam, that is water vapor at 371 Kelvin, 100 degree Celsius, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो मतलब 373 केल्विन पे स्टीम फॉर्म होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी होगी.
वाटर से ज्यादा, ठीक है। 100 डिग्री में जो पानी उबल रहा है वो, और 100 डिग्री में जो स्टीम फॉर्म में चला गया वो, उन दोनों में से एनर्जी किसमें ज्यादा है, ठीक है। तो किसमें ज्यादा है, स्टीम में ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी आ जाती है, कि जिसके कारण उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है। वाटर में क्या होता है, पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, मतलब उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है। तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और स्टीम, उन दोनों में से स्टीम जो है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब अगर हम बर्न होता है वाटर से, गर्म पानी से हमें बर्न होगा तो उसका इफेक्ट कम होगा जितना स्टीम से अगर बर्न होता है तो, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। चलो सॉलिड को हम हीट देंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को अगर हीट देंगे तो गैस बनेगी। गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगी, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा, ठीक है। सो वी इन्फर दैट the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. टेम्परेचर अगर चेंज करोगे आप तो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होगा। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. हीट देंगे तो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट दिया गया है, यूनिट दिया जाते हैं केल्विन, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। but there are some that change directly from solid state to gaseous state. कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा, डायरेक्टली गैस टू सॉलिड बन जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। बीच का स्टेट नहीं आता, जैसे जनरली सॉलिड टू लिक्विड टू गैस होता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस है डायरेक्टली सॉलिड टू गैस हो जाते हैं और गैस टू सॉलिड हो जाते हैं, मतलब लिक्विड नहीं बनेगा बीच में। जैसे यहाँ पे हमारे पास एमोनियम, यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, NH4Cl रहेगा इसका। तो एमोनियम को सब्लिमेशन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हमें, सब्लिमेशन। क्या सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। सब्लिमेशन मतलब डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। यहाँ पे जो है चाइना डिश रखा हुआ है एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एमोनियम क्लोराइड वेपर है और यहाँ पे सॉलिड हो रहा है।
अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे हम तो क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में जाएगा और ठंडा होगा तो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये सब्लिमेशन हो गया। A change of state directly from a change of a state directly from a solid to gas without changing into a liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid और गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो रही है, सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड याद रखने हैं हमें, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, ये सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, और गैस टू डायरेक्टली सॉलिड होता है तो उसे बोलेंगे डिपोजिशन। ओके, यहाँ पे दिखाया गया इन दोनों वर्ड को, सब्लिमेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, और डिपोजिशन गैस टू सॉलिड। ठीक है, सॉलिड टू फ्यूजन होगा तो लिक्विड होगा, लिक्विड टू वेपराइजेशन होगा तो गैस होगा, गैस टू डिपोजिशन होगा तो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लिक्विड टू सॉलिडिफिकेशन होगा तो सॉलिड हो जाएगा, और गैस टू कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड हो जाएगा, और सॉलिड टू गैस होगा तो सब्लिमेशन। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, वर्ड याद रखना है, फ्यूजन, सब सॉलिडिफिकेशन, तो फ्यूजन होगा तो लिक्विड होगा, सॉलिड सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड का वेपराइजेशन होगा गैस होगा, कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड हो जाएगा, जैसे गैस का डिपोजिशन होगा तो सॉलिड बनेगा, और सब्लिमेशन होगा तो गैस बन जाएगा। इस तरह से कल भी बना सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अभी किसका इफेक्ट देखना हमें, प्रेशर से क्या होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया अभी तक हमने, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress the gas? गैस को हम प्रेशर डालेंगे ज्यादा, जैसे एटमॉस्फेयर is a unit of measuring pressure exerted by gas. The unit of pressure is Pascal, याद रखना है Pascal, ये याद रखना है उसका, 1 atmosphere is equal to 1.01 into 10⁵ Pascal। ठीक है, चलो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे पिस्टन है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे गैस है। By applying pressure, particles of matter can be brought close together. जैसे ये यहाँ पे पार्टिकल्स दूर है, लेकिन जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया ज्यादा, ये पार्टिकल्स नजदीक आ गए, और बढ़ाया तो और नजदीक आ गए। ठीक है, इसमें देखो पार्टिकल्स दूर है, तो पार्टिकल्स प्रेशर बढ़ाने से नजदीक आ गए, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो एकदम नजदीक आ जाए। ओके, applying pressure and reducing temperature, याद रखते हैं, applying pressure and reducing temperature can liquefy gas, इम्पोर्टेंट है। applying pressure, प्रेशर बढ़ाओ और टेम्परेचर कम करो तो गैस का क्या होगा, गैस को क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। Have you heard of some solid carbon dioxide? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। It is stored under high pressure. Solid CO2 gas converted directly to
गैस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे तो उसे सॉलिड फॉर्म में कर सकते हो आप, और प्रेशर कम करोगे तो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो भी लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहा। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं क्योंकि उसे प्रेशराइज करके हम सीधा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे ही खुला रखोगे तो उसमें डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाएगा। वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा बीच में। ड्राई आइस बोलते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of the substance. Substance पे pressure and temperature दोनों की असर होती है। बेटा इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब प्रेशर का और टेम्परेचर का दोनों का इफेक्ट होगा। स्टेट ऑफ सब्सटेंस कौन सा रहेगा, उस पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के इफेक्ट से पता चलेगा। इंटरकन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, लाइक सबको 273 से प्लस कर दो तो सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर वेपर होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो वाटर होगा या तो वाटर वेपर होगा। ठीक है, वाटर वेपर होगा तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। Temperature remains the same constant during the change of the state, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम करती है जो टेम्परेचर में नहीं दिखाई, लेकिन कांस्टेंट हीट हमें देनी पड़ती है।